वेलकम बैक गाइस. एपिसोड नंबर कौन सा था? 6 5 है साले. 5. ओह शिट. 5 ओके. मुझे भी चेक करने थे. हाँ 5 है. हाँ. ओके. तो अगेन गाइस वेलकम to Clean Slate Graffiti. Me Thomas and Siddhant, and we have two more people today. आज हमारे साथ दो लॉन्डे हैं जो हमारे साथ आई थिंक मेरे साथ तो 9th 10th 11th 12th एंड सिद्धांत तेरे साथ 8th में भी थे शायद से, राइट? ये 8th में आए थे. हाँ करेक्ट. तो we are introducing two Microsoft dudes. One Kaustubh. हेलो बोल दे भाई. Hi, I am Kaustubh. और दूसरा कार्तिक है. एंड ये दो हम लाइक क्लोज ग्रुप फ्रेंड्स है. बाद आज इनसे बातचीत होगी, इनकी कहानी होगी. इनकी कहानी भी नहीं, थोड़ा इंटरेक्शन इनके साथ होगा आज. तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कार्तिक. कम ऑन. हाँ मतलब वो इंट्रोड्यूस कर ही दिया इसने. आगे बोल दे. माय नेम इज. आगे बोल दे. हम लोग का मैंने हर बार नोटिस करा है कि तुम जब भी एपिसोड स्टार्ट करते हो कोई ना कोई एपिसोड भूला हुआ होता है नंबर. थोड़ा सा तो ग्राउंड वर्क करके रखा करो. ग्राउंड वर्क. हाँ. नहीं दिस इज द पॉइंट कि अपना ब्रूटली वो होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए. स्पॉन्टेनियस में हमें याद थोड़ा रहेगा यार. नहीं स्पॉन्टेनियस रखो बट ओवर कॉम्पेंसेट मत करो इस बार. अच्छा ठीक है. अब तू आती मम्मी मत बन. ठीक है. आती मम्मी आते तू फीडबैक मत दे. तू सारे दोस्त मम्मी वाली हरकतें मत कर. ठीक है. आई मीन मैं एक्चुअली सोच रहा था थॉमस, जैसे तूने बोला ना कि हाय दिस इज क्लीन स्लेट ग्रेफिटी, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मतलब इंटरेक्शन में ये दो लोग हैं ना जब तक साथ में, और जब तक हम चारों साथ हैं ये क्लीन तो नहीं होने वाली कन्वर्सेशन. इसमें सिर्फ ग्रेविटी होने वाला है. ग्राफिटी होने वाली है. But नहीं we'll try to keep it clean that way. We'll try to do it. हाँ कार्तिक तू कुछ कह रहा था. नहीं बस यही था. बढ़िया चलो. But then okay, तो in the sense ये दो भी I mean इनका टाइम हो गया, राइट? अभी माइक्रोसॉफ्ट में, राइट? कितना टाइम हो गया जॉब? हमारे साथ ही स्टार्टअप they graduated and they started their jobs and working as software developers as every other Indian सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ओके. ये क्या है भाई? कितना ही फर्क है. बताइए क्या डिफरेंस है? आज तो फर्क बता. आज तो बता दे मेरे को. देख, so two things: software developer and software engineer. So no offense to either of those, right? But software developer is a person who actually, how do you say? It's basically like developing the product, right? Software engineers are more into the intricacies of the engineering of the product. Art. Don't use the word you're trying to define in the definition. ये नहीं सुना कभी. इंग्लिश में कम मार्क्स आते होंगे. Coding, that's not my forte, but that's why I chose coding. थोड़ा अपना dumb down कर. अपना audience को सब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नहीं है तो डम डाउन कर. क्या है? हमें डेवलपर का मतलब भी नहीं पता, हमें इंजीनियरिंग का मतलब भी नहीं पता. हाँ बता बोल. हाँ तो basically if I am to be very lame, so layman, sorry, so basically lame तो है, वो बनने की जरूरत नहीं है. I just proved it just before, right? Yes, evidently. So basically development, अगर if you think about it, it's basically creating the product. Basically you're creating writing the code to create the product, and like from the ground up to the MVP basically, and keep going with that. Software engineering basically involves more intricacies into the art basically. So if you can say कि there are a lot of other factors involved कि आप scale कैसे करना है, या फिर how do you actually furnish the product, how do you improve the user experience. So all these things come in the terms of engineering basically. So that there's a very subtle difference, but most companies don't differentiate in that, but in the titles. But you also basically write codes, right? You also write code, and the developers also write code. Yeah, that is true. तो ऐसे समझते हैं कि software development is a subset of software engineering. हाँ. Okay, हाँ. मैं उल्टा समझ रहा था एक्चुअली कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. So development comes in under engineering, but engineering also involves aspects like design, so system design, फिर then database design and stuff like that. A lot of basically it's more depth into the art of product development. Okay. No, I think that word की product development is also an art. I think वो India में people don't believe on that, but I think software development is an art too.
एंड ऑफ द डे बहुत काम जाता है उसमें भाई. अच्छा 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 लो बट आई तू थिंक वो आई थिंक आर्टिस्ट नहीं है ना, बट तू वो मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैंने देखा लोगों को और मैंने इन दोनों को डिस्क्राइब किया, मैंने अपने आप को नहीं बोला. एंड अगेन आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है भाई, द पिक्चर कैन बी बैड. सो ओ, Bomb. ये अच्छा देखिए है. आज के आर्टिस्ट कोई भी हो पॉडकास्ट के लिए आर्टिस्ट आज कोई के भी हो सकता पॉडकास्ट के लिए हाँ है, आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है, पिक्चर जैसी भी हो. हाँ, ये कम ऑन. ये भाई कैप्शन बन सकता है इस वाले पॉडकास्ट का. क्या करता है तू अब कार्तिक? अब मैं कहता कि आज के पॉडकास्ट के लिए आर्टिस्ट ही है, ठीक है, 3 है यहाँ पे. तो आज के लिए तीन है यहाँ आर्टिस्ट ही पे, हाँ, कंसिडर होगा. आर्टिस्ट. 3 मतलब क्यों? 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना अपन. अबे थॉमस इंजीनियर थोड़ा ना है, थॉमस है, वो तो थॉमस है. डेटा इंजीनियर है बॉयज. वो डेटा साइंटिस्ट है, वो इंजीनियर है. वो भी डेटा अपनी साइंटिस्ट तरफ को ही है. इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं में रहेगा. डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट में भी फर्क है. काफी फर्क है एक्चुअली उसमें. काफी फर्क है. इसमें सबसेट में नहीं आता वो. वो इसमें सबसेट वाला नहीं है. अभी के लिए इस तरह समझ कि डेटा साइंटिस्ट मतलब सेक्सीएस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी. बस खत्म. True that. बस थॉमस वैसे ही बोल दिया बस. आ जाओ सब आ जाओ. थॉमस इज लिविंग द ड्रीम मैन. थॉमस Living अलग the उसमें dream. चल रहा है भाई. लिविंग द ड्रीम उसका ड्रीम था भाई. वो सोता था ना छोटे रात को. छोटे मतलब सस्ता सस्ता प्ले बॉय हो अभी फिलहाल. ऐसे स्कूल डेज में बट सोचता तो था थॉमस हैदराबाद में काम करना है. आई थिंक ये 4 लोग मेरे साथ थे. ये 4 मतलब 3 लोग इंक्लूडिंग मी, जो सेम क्लास में मेरा कोडिंग साइकिल इन सबने देखा है. 11th 12th में कोडिंग I साइकिल. can I can And I think attest to that. I Kaustav remember that. Kaustav is that one person who recalls my coding and laughs at it. नहीं मैं बताता हूँ, मैंने तेरा कोडिंग साइकिल 12th के बोर्ड पेपर में भी देखा है. अबे ओ कम ऑन, ये मैंने भी दिखाया है तेरे को, तेरे मार्क्स भी आए थे उसमें. तो कम ऑन, दोनों के बराबर आए थे भाई. दोनों के बराबर दोनों के आए थे. सेम आए थे, सेम टू सेम स्कोर आया था, सेम टू सेम. और हमारे साइड में एक बंदा बैठा था जो हमसे भी गया गुजरा था उस दिन, एंड ही गॉट बेटर मार्क्स देन अस. I can't tell his name right now, but That must hurt. that hurt me bad, man. I mean, हाँ, उस बंदे का yeah. नाम बोले, वो पॉडकास्ट सुन के बोले क्या बात कर रहा है भाई, मेरा तेरे से बेटर है. खुद हैरान हो जाएगा सुन के. he left like 1 hour after before the the final call. उससे पहले निकल गया. हाँ, And हाँ, I मुझे still याद है. remember सिद्धांत हाँ. घूम के देख रहा है और बोल रहा है ये क्यों निकल गया. अरे आई रिमेम्बर उसने सबमिट करा, टीचर कहती हो गया मैम, कुछ आता ही नहीं है. करके देखे चला गया. ऐसा कुछ हुआ, बट उसके मार्क्स अच्छे आए थे. मार्क्स Come on. अच्छे आए थे भाई. हाँ. पता नहीं. अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा होगा उसने, अप्सरा. सही. छोड़ दे, इस पार्ट को हम कट कर देते हैं. ये वाला जोक हम कट कर देंगे. नहीं वाला हटा दो. बहुत 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 लेम था ये. कौस्तभ तो कंटेजियस है सारे, बहुत अगेन contagious. यार ये सब हैदराबाद में पहुंच गए. तुम्हारा पहले चंडीगढ़ भी सीन था ना, तो आई मीन डू यू फील दैट ये आईटी जोन कुछ फर्क है? मेरे को पर्सनली मेजर सिटीज अपने आईटी जोन ही है ना, सो डू यू फील कि कुछ चेंज है? पहले चंडीगढ़ में तुम थे ना. ठीक है, आई थिंक आई टेक इट फर्स्ट, बट आई थिंक ये जो नए नए इमर्जिंग लोकेशंस है ना आईटी के लिए, सो बेसिकली नोएडा, गुड़गांव, ये दीज आर मोर ऑफ लाइक आईटी सर्विस वाले एरियाज, but the core of the IT, if you say so, that is basically based out of Bangalore and Hyderabad only. So most major MNCs are based out of that area. Rather, it might be Indian, it might not be Indian, but yeah, I mean the service sector, in IT service sector is based out of Noida, Gurgaon, and these locations basically. हाँ मतलब जो अप एंड कमिंग है वो मतलब थोड़ा नई सिटीज में आ रहा है, बट ऐसे एस्टैब्लिश्ड जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर वाला था वो मतलब बैंगलोर, हैदराबाद, ऐसे मतलब मेन सिटीज में ही है. बट द थिंग इज कि अब कोविड की वजह से तो सब कुछ लाइक एवरीथिंग इज ब्लोन आउट ऑफ वाटर. सब कहीं से भी काम कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. सब तो हाँ पटना पहुंचे हुए हैं. एग्जैक्टली. तो इट्स इमैटेरियल अब मेरे हिसाब से तो लाइक कोई कहीं से I think मैं जब हैदराबाद में पहुंचा था, so the first 2 people that came into mind was Kaustav and Karthik. मैं हैदराबाद जाके जॉब करने के बाद मेरा वर्क फ्रॉम होम चेंज हो गया, अभी तक वो नहीं पहुंचा वहां तक. बाकी सब कुछ हो गया. भाई फर्क नहीं पड़ता यार, हमें बुला ही नहीं रहे वापस, तो क्या कर रहे हो? Which reminds, आज मेरा फर्स्ट ऑफिस डे था physically, like going to the वैसे तो office. इस you were साल called. अच्छा. हाँ Oh, मतलब your work from home is not there anymore. yeah, I mean it's a hybrid work system, work environment, whatever we call it, and again it's on voluntary basis. जिसको ऑफिस से काम करना है वो ऑफिस से आए.
तो आज मैं गया ऑफिस, तो काफी फर्क लगता है यार। मतलब एक्चुअली पता है फर्क क्यों लगता है, जो मेरे को रियलाइज हुआ, मैं मॉम से भी बात कर रहा था कि मम्मी से बात कर रहा था नहीं, तो कि घर में होता हूँ ना एकदम ऐसे चिल निक्कर में बैठ के काम कर रहा हूँ, बीच में मैंने यूट्यूब के वीडियोस खोल लिए, मैंने रियलाइज किया कि मैं एक्चुअली एक गिवन काम को जो 1 घंटे में हो सकता है, मैं उसको 1.5, 2, 3 घंटे में भी कभी कभी करता हूँ, क्योंकि मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट बहुत इजीली अपने, आई कैन अफोर्ड टू बी डिस्ट्रैक्टेड बेसिकली, कोई Yeah. देख नहीं रहा है, घंटा Afford is the key term here, right? है ना। वहां पे मैं ऐसे बैठा हूँ, मेरे आसपास एकदम मेरे सामने डायरेक्टर बैठा है, मेरा बाजू में मेरा एक मैनेजर बैठा है, मैं ओ भाई मैं वीडियो चलाऊं तो मेरे को जज तो नहीं करेंगे क्या करूं, अपना ही पॉडकास्ट सुनूं, वो क्लीन स्लेट ग्राफिटी का वो कवर देख के उन्हें क्या कर रहा, काम नहीं कर रहा क्या बैठ के तू पॉडकास्ट बनाएगा, तू पॉडकास्ट बना रहा है हीरो बनेगा, हीरो बनेगा काम कर, एनालिटिक्स लगा अपनी एनालिटिक्स। तो I realized actually it was a very productive day, yaar. It was a very productive day. Like for I think for the first time in a very long time, for the first time जो भी है, मेरे को वो जो एंड में थॉमस हम लोग याद है डिस्कस कर रहे थे कि टाइम स्टैम्प डालना पड़ता है कि दिन में क्या काम किया, वो डालते हुए आज मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि यार कैसे किसी तरह 7.5 घंटे बनाऊं। कुछ 7.5 घंटे बन रहे थे, इनफैक्ट आज मेरा 8.5 घंटे बना है, मैंने इतना काम खींचा है। अब पता नहीं टिपिकल इंडियन, आधा घंटा ज्यादा खींचेगा वो। नहीं, मैं वो आधा घंटे की लंच ब्रेक भी डाल दी ना मैंने उसमें। अच्छा, चिंदी बना, टिपिकल इंडियन। Yeah, but to be honest, I've been dying for one of those days, man. I mean, I remember the last productive working days basically before all this commotion hit, right? So उस time पे हम just एक team trip से आए थे and we were like very happy and सब कुछ was going to plan. So I remember those days. मतलब it was the times when you were working, right? इतना intense होता था, and then when you got off, there was like a lot of intense fun as well. So that balance maintain जो होता है ना, it's really nice. I mean, you're productive as well, you're having fun. So तुम्हारे mental strain नहीं पड़ता है basically, right? तो हाँ, unfortunately वो दिन अब तक आया नहीं है काफी टाइम से, 1.5 साल होने वाला है। तो हाँ मतलब तुम्हारे ऑफिस से इतने कूल हैं, मतलब चिल करने लगे, टीटी खेलने लग गए। अभी घर हाँ में क्या यार। है, चिल करने के लिए मम्मी बोलेंगे पंखे साफ कर, बेड ठीक कर। हाँ, मैं उठा, मेरा हाँ भाई तू आज टमाटर क्यों नहीं खरीदा मेरे लिए, टमाटर खरीद के ला। तो चलो ब्रेक वैसा है। मैनेजर को क्या बोला, सर सॉरी टमाटर लेने गया था। अरे नहीं, आई मीन हाँ, ऐसे हुए कि मैं कॉल में था, कॉल से उठा ऐसे, आई थिंक मैंने एक ब्रेक लिया था, मॉम ने बोला कि टमाटर खरीद गया, हाँ ठीक है वही ब्रेक सही, चलो टमाटर टेस्ट। अरे मतलब सही में, मतलब मेरे भी घर में होता था। अच्छा तूने ब्रेक लिया, मेरे को लगा बातें करेंगे, कुछ बातें बतानी होंगी, कुछ बातें, अच्छा बातें, चल ठीक है अब तू लंच बना दे मेरे लिए, मेरे को बड़े टाइम से कुछ मैं बोर हो गई अपना खाना खा के, तू बना आज। यार कोई मतलब इज्जत ही नहीं है, मतलब खाना बनाओ मैं बैठ। घर पे कभी प्राइवेसी होती नहीं है, मेरा लिटरली ऐसा रहता है, दरवाजा ऐसे कभी भी खोल के आ जाएंगे मम्मी, मेरी मीटिंग चल रही है, मैं लिटरली आंख खोल, मम्मी प्लीज आई थिंक सॉरी बट स्मॉल करेक्शन, इंडियन घरों में बच्चों के लिए प्राइवेसी नहीं है। हाँ भाई, जीरो चांस ही नहीं। भाई बच्चा दरवाजा बंद करके काम क्या कर ले, पेरेंट्स को वो हो जाते हैं दरवाजा क्यों बंद है, दरवाजा क्यों बंद है, दरवाजा क्यों बंद है, कैसे कैसे। बट हाँ लाइक ये बात बहुत सही थी तेरी, लाइक क्योंकि जब पैंडेमिक हिट करा था मार्च में, तो उस टाइम पे हमारा वही 6 मंथ इंटर्नशिप वाला टाइम चल रहा था, तो मतलब अराउंड 2.5 months हो गए थे इन ऑफिस। तो मतलब वो रिदम बैठ जाता है ना, लाइक ऑफिस सुबह जाओ अच्छे से, लाइक मतलब वहाँ पे सुबह से टाइम पास भी कर लेते थे हम, कुछ खेल वेल लिया, फिर उसके बाद काम करने गए। बट फिर जब काम करते थे तो फुल फोकस होता था, आसपास लोग होते थे। मेन मिस मेरे को फील होता है कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस, बहुत डिफरेंस पड़ता है, लाइक स्पेशली। हाँ बोल नहीं गो अहेड, I'll go there। हाँ तो मतलब वही, तो बेसिकली कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस में मेरे को सबसे ज्यादा डाउनफॉल फील होता है। तो जब मैं वापस आया था वहां से, तो मेरे को सडन ऐसे फील हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ, लाइक मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि गाइडेंस चाहिए रहती है ना, क्योंकि ऊपर से इंटर्नशिप भी थी, तो आई वाज नॉट दैट फेमिलियर। तो मेरे को लगता था कि गाइडेंस नहीं है ये वो, तो अराउंड 1 महीना तो मेरा एडजस्ट करने में चला गया टू एक्चुअली गेट इनटू दैट रिदम कि अच्छा घर पे भी हो सकता है, लाइक खुद को कन्विंस करने के लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो रहा है। तो मतलब वो बट फिर धीरे धीरे फिर अब तो ऑब्वियसली 1.5 इयर्स हो गया सब, तो क्या ही है सब 1.5 क्या हो गया, इयर्स हो गए। हाँ मतलब 1.5 साल हो गया, तो 1.5 साल हो गया। हाँ नहीं वो तो है भाई। आज पता है मेरे को प्रॉब्लम क्या हुई सुबह, कि ऑफिस में कपड़े क्या पहन के जाते हैं। मैं उस बात पे कंफ्यूज था कि यार जीन्स ज्यादा इनफॉर्मल तो नहीं मानते हैं, मेरे को पता ही नहीं है क्योंकि मेरे ऑफिस कल्चर क्या है।
तो मैं जीन्स और शर्ट कर पहन के गया। शर्ट मैंने सोचा, मैं मेरा पहले मन था एक पोलो टी शर्ट पहन जाऊंगा, मुझे लगा यार कम से कम पहले दिन शर्ट तो पहन के चला जाए, इतना भी वो मत बन। तो मैंने शर्ट इन करके वहां गया, सब सूट में आए, मेरी फट गई। मैंने दरवाजा खोला, भाई लोग मेरे को देख रहे हैं और मैं लोगों को देख रहा हूँ, और फिर एक ने आके बोला नाइस ड्रेस, और मैं ऐसे नाइस शर्ट करके बोला उसने, मेरी ऐसे टॉन्ट तो नहीं मार रहा है ये। तो सूट में, गेस व्हाट, सब सूट में थे। फिर बाद में मैं चुपचाप बैठ के काम पे बैठा, तो हमारी जो रिसेप्शनिस्ट है, मैं बाहर गया, मैंने उससे ऐसे ही इनफॉर्मली पूछा, मैं कहा एम आई लाइक टू लाइक व्हाट यू, मैं बहुत आउट ड्रेस्ड हूँ क्या, मतलब ऐसा करके मैंने कुछ पूछा कि मैं Overdressed. बहुत ओवर ड्रेस्ड। Yes, you are. बोला नहीं तो चिल कर, वो सब कॉर्पोरेट फोटोग्राफ के लिए आए हैं। तो मैं ओ अच्छा फिर ठीक है, फिर मैं तेरा फोटोग्राफ नहीं था आज? मेरा हो गया, मेरा परसों हुआ था। परसों वाला तो है? लिंक्डइन चेक कर सकते हैं, मैंने फोटो अपडेट कर दिया। तो तू कब शूट पे गया था? मैं फिर से जीन्स शर्ट और शर्ट के ऊपर एक ब्लेजर ले गया था बस। सूट नहीं, सूट नहीं पूरा फॉर्मल है यार तुम्हारा। अबे सूट, अबे ऐसा नहीं है, सूट एक ही है ना यार। हाँ, सही में, हाँ। हर दिन ऑफिस में पहनेंगे तो भाई, मतलब कभी कोई स्पेशल हो तो क्या पहनूंगा फिर मैं। साले तू कल बॉलिंग करने भी यही सूट पहन के आया था, आज मेरी शादी पे भी यही सूट में आया है। बेल्ट तो चेंज कर ले कम से कम। लिमिटेड रिसोर्सेज ब्रो, लिमिटेड रिसोर्सेज। नहीं सूट इतना वो नहीं है। तो लोग, उन्होंने ना एक्चुअली क्या रखा हुआ, उन्होंने कबर्ड्स हैं, कबर्ड्स में लोगों ने अपने कुछ जैकेट्स, मतलब ब्लेजर्स रख दिए हैं टांग के। कोई भी अगर वेबिनार या कोई फॉर्मल जूम कॉल होती है तो ऐसे ब्लेजर डाल लेते हैं शर्ट के ऊपर, अटेंड करके वापस ब्लेजर टांग देते हैं। ये सही है, मतलब ये रेंटेड स्कीम। कूल लगा, मैं भी करने वाला हूँ। मैं भी अपना एक ब्लेजर ले जाके ना मैं टांग दूंगा, अब कि कभी जरूरत पड़े। लोग के लिए अपने पास लोग जाके रखते हैं, मतलब कंपनी रखती नहीं है ना। कंपनी नहीं रखती, कंपनी के तब ठीक है। अपने 2-3 भी हैं, कंपनी ने भी 2-3 रखे हुए हैं वैसे स्पेयर इन छोटा केस। मोटा किसी भी साइज का है, एक बड़ा सा एक कोट पहन के बैठ गया बंदा। छोटा ब्लेजर तो फिर चल सकता है ना, वो तो सिर्फ आर्म से ही छोटा, हाथ से, और हाथ तो दिखता नहीं है वीडियो कॉल में, शोल्डर्स दिखते हैं बस, वो परफेक्ट होता चलेगा। पूरा मतलब बड़ा वाला पहन के चादर ओढ़ के आ गया बंदा, एक ऐसा फील है। तो देख, टी टेबल नहीं है हमारे ऑफिस में, बट ब्लेजर्स बहुत है। कमी कुछ नहीं है। सही है यार। आई थिंक कौस्तुभ और कार्तिक ने कभी ब्लेजर जाके ढंग से एक शर्ट पहन के नहीं गए होंगे ऑफिस। मैं पहले दिन only. फर्स्ट टाइम जब इंटर्नशिप करने गया था ना माइक्रोसॉफ्ट में, इट वाज बैक इन 2019 समर। उस दिन मैं एक ब्लू कलर का पूरा फॉर्मल शर्ट और मतलब प्रॉपर ट्राउजर्स पहन गया था मैं, ठीक है। मैंने बोला था जूते भी पहन गया था। हाँ मतलब इंटरव्यू, हमारे इंटरव्यू के टाइम पे भी ऐसा समझ आ गया था कि सब कैजुअली आते हैं। मैं पहली दिन पहन के गया था, मैं बोला चल लेते हैं। फिर मैं देखा मेरा सिस्टर टीम का जो M2 था, बेसिकली सेकंड लेवल मैनेजर थे, वो लोफर्स, शॉर्ट्स और पोलो डाल के आए थे। मैंने कहा ये क्या तरीका है। मैं उस दिन के बाद से मैंने कभी फॉर्मल नहीं डाले। अबे वो भी इसको देख रहे होंगे, पता नहीं कौन सा वकील आ गया, क्या वकालत करके आया है। सीधा क्या इंटर्नशिप फर्स्ट डे गॉट इट। नूबी तू आज बकरा बन, तू यहाँ पे आज फुच्चड़ आया फ्रेशर है। लेजेंड उस दिन के बाद कभी फॉर्मल नहीं हुआ। आई फेल्ट सो आउट ऑफ प्लेस उस दिन। माय गॉड। मतलब आई थिंक मतलब हाँ, मैं लिटरली इसको बोला था, मैंने इसको बोला था कि मत पहन, जरूरत नहीं है, हम लोग नॉर्मल कैजुअल्स पहन के जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, ट्रस्ट नहीं। ठीक है चलो, तो एक दिन कर लिया ऐसे। बट वही मैक्सिमम ड्रेस्ड हम उसी दिन थे जिस दिन हमने माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दिया था। आई थिंक उससे ज्यादा कभी हम ड्रेस हुए ही नहीं उसके बाद कि भाई ठीक है। बट फिर तो मैं कैजुअली शॉर्ट्स पहन के जाने लगा, चप्पल पहन के जाने लगा। मेरे को एक बार मेरे क्या कहते हैं, हाँ तो बेसिकली ये वही टीम ट्रिप के बाद वाली टाइम है, हम बीच साइड गए थे ऑब्वियसली। तो उसके बाद ना मैं ऐसे मस्त शॉर्ट्स और मतलब टी शर्ट डाल के गया था, चप्पल पहन के गया था। तो मेरे थर्ड लेवल जो मैनेजर है ना, उन्होंने मेरे को पूछा यार तुम अभी भी बीच मूड में ही हो, तुम उतरे नहीं तुम्हारी। लाइक हाँ सॉरी, मतलब आई एम अकस्टम्ड टू दिस। वो लाइक हाँ ठीक है चलो। but to give a little background to for the viewers, कौस्तुभ और कार्तिक की स्टोरी ये है फिलहाल ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग 8th क्लास में they both entered the school together, my school,
मैं ही बोलूंगा क्योंकि तुम लोग बाद में आए हो। तो फॉलोड बाय थॉमस इन 9th स्टैंडर्ड। इन्होंने स्कूल एक साथ ज्वाइन करा, इनका सेक्शन एक था। फिर उन्होंने बीटेक जेई का एग्जाम निकाला, इनकी यूनिवर्स इनको एक ही सेम इंस्टीट्यूशन मिला, सेम कोर्स हाँ सेम कोर्स सेम क्लासरूम। इनका हॉस्टल भी सेम हो चुका था, हॉस्टल एज इन नॉट द बिल्डिंग, द रूम इटसेल्फ, ठीक है। एंड उसके बाद इनकी पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 लोगों को माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिली, वो ये 2 थे। मतलब मेरे को तो कभी कभी शक होता है, एक ने पेपर इन्होंने इकट्ठे बैठ के वो एप्टीट्यूड टेस्ट लिखा होगा, ठीक है। अब अपना कंप्यूटर साइंस का पेपर देते थे इनका एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी मतलब लेजिट क्वेश्चंस आएंगे, सुहाग रात भी इकट्ठे करनी है, मतलब क्या सीन है भाई। सब सुन गया भाई अपने, जिस दिन हुआ था ना उस दिन सब यही बचा है। उस दिन तो दूर दूर के मीम्स आने लगे थे, पता नहीं ये दोनों कब से साथ हैं, जॉब भी साथ करेंगे। करण अर्जुन, विक्रम बेताल, तो सारे नाम जोड़ दो तुम पे। I think this year is the 10th year, right? 8th was in 2011, right? हाँ, yes. हाँ, so 8 तो 2011 decade हो गया भाई। Decade of हाँ, being together. But, 8 was Being together. Sorry. being together. प्यार सच्चा प्यार। तुम्हारे रिलेशनशिप में स्टैंड किए हैं? कौन सा बता? Let's not go there. देख बंदियां चेंज हो गई, बंदा कांस्टेंट है। बंदा कांस्टेंट है। लॉयल्टी है लड़के में। वफादार है दोनों, वफादार। लॉयल्टी मत बोल, वफादार में ज्यादा फील है। वफादार। गहराइयत है। गहराइयत। तुम्हारे डिपार्टमेंट्स भी सेम है माइक्रोसॉफ्ट में, अलग अलग है? नहीं, प्रोडक्ट्स अलग है, हम अलग प्रोडक्ट्स में काम क्या प्रोडक्ट्स है? तू पेंट पे काम करता है तू? काश। पेंट भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है ना? हाँ, Microsoft MS। तो वो जो गेम्स होती है माइक्रोसॉफ्ट की, उसका भी एक डिपार्टमेंट बनता है, वही माइनस्वीपर, सॉलिटेयर, पिनबॉल, या वो कहीं और? हाँ, तो पूरा एक एक्सबॉक्स डिवीजन है ना पूरा, तो उधर ही सारे गेम्स रिलेटेड सारा उधर ही होता है। एक मिनट भाई, हार्ट अटैक आया, सॉलिटेयर एक्सबॉक्स में आता है? नहीं, पहले बना था ना ये, सॉलिटेयर तो बहुत पहले डेवलप हुआ था, तो उस टाइम पे होगा उनका उस डिपार्टमेंट, बट अब एवरीथिंग कम्स अंडर एक्सबॉक्स, अगर कुछ भी गेम रिलेटेड। तो अभी तू किस डिपार्टमेंट में कौस्तभ? So basically, I work in it's a Azure powered learning management system, basically EdTech you can say. तो वही क्लाउड। पार्ट टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बाकी टाइम ये सेल्समैन, कोल्ड कॉलिंग। फ्री टाइम में कोई कंपनी एक्वायर कर लेते हैं वीकेंड पे। अरे वो मंडे को इंडिया का मैच स्पॉन्सर कर दे, हाँ चलो भेज देते हैं लड़कों को। एक चार्टर बनेंगे सब। हाँ, तो तू एडटेक में। कार्तिक तू? मेरा एक्चुअली ऑफिस में एक डायग्रामिंग टूल एक्वायर करा था काफी टाइम पहले माइक्रोसॉफ्ट ने, विजियो नाम से। तो अभी मतलब विजियो का, हाँ एग्जैक्टली, सो डायग्रामिंग नीड्स के लिए। तो पहले सिर्फ डेस्कटॉप ऐप ही था, बट अब ऑब्वियसली क्योंकि सब कुछ वेब जा रहा है, तो लास्ट 5-6 ईयर से वेब पे स्विच करा है। तो अभी वेब का मतलब काफी डेवलपमेंट चल रहा है। तो महंगा वाला पेंट? हाँ, मतलब नहीं, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड पेंट, स्ट्रक्चर्ड पेंट, सस्ता मैटलैब। Like the desktop app is amazing, but हाँ, like online के लिए काफी डेवलपमेंट चाहिए, तो चल रहा है। But interestingly, coincidentally, हम दोनों के पूरे टीम is entirely based out of India. It's all मतलब Visio का तो नहीं, but at least दोनों प्रोडक्ट्स साथ में इंडिया में ही डेवलप होते हैं and fully managed by a team in India itself. ओह बढ़िया। मतलब जनरली क्रॉस कोलैबोरेशन बहुत होता है, लाइक आधी टीम्स इंडिया में, आधी टीम्स यूएस में, क्योंकि 2-3 ऑफिसेस हैं, तो ऐसे क्रॉस कोलैबोरेशन जनरली होता है। तो उसमें लाइक काफी दिक्कतें होती है, लाइक मीटिंग्स होंगी ऑड टाइमिंग्स पे, क्योंकि ऑब्वियसली यू कैन नॉट मैच यूएस की टाइमिंग्स के साथ। तो वैसे वो सब दिक्कत होती है, बट हम दोनों का पूरा इंडिया बेस्ड ही है, तो काफी चिल है उसकी वजह से। So 9 to 5. So that's yes. One, yeah. That's अबे एक्चुअली वो परफेक्ट टाइमिंग होती है, थोड़ा अपने लिए टाइम होता है, या तो इवनिंग टाइम्स एटलीस्ट यू हैव इट टू योरसेल्फ। अगर तू यूएस टाइम या यूके टाइम कर रहा है, ओ भाई दिन खत्म। यार भाई, टू बी ऑनेस्ट, सुबह का टाइम किसके पास होता है बताना जरा। हाँ, सुबह का नहीं, मतलब शाम का बोल रहा हूँ मैं। शाम का, हाँ वही कह रहा हूँ, मतलब दैट, हाँ मतलब कुछ जगह पे ऐसा होता है ना कि योर शिफ्ट स्टार्ट्स इन द इवनिंग और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें फिर डे डजंट बिलोंग टू यू, बेसिकली योर एंटायर डे इज स्पेंट अप इन द
job itself ना सुबह का Yeah. टाइम पे कौन there's no meeting मतलब meetups or any get together ऐसा तो कुछ होता नहीं है तो Actually, it's not just about meeting and get-togethers. Like मैं भी जब इंडिया में था यूके टाइम के हिसाब से काम कर रहा था. You it's like you're sleeping late because तुम यूके टाइम के हिसाब से सो रहे हो, right? तो और जब तुम सुबह उठते हो you're lazy like hell. yeah Like तुम्हारा exactly मन ही नहीं करता. Your day you end up starting your day much later than the scheduled time. तो काफी मतलब उस तरह वो अजीब सीन हो जाता है. Anyway, कार्तिक तू आ गया, डिस्कनेक्ट हो गया था. अरे मेरा नेट हमेशा ड्रॉप होता ही है वाईफाई का, पता नहीं क्या माइक्रोसॉफ्ट वालों का भी ऐसा होता है यार. यार माइक्रोसॉफ्ट भी दे रहा था I saw that coming from a long way. एयरटेल यार. From a long way, he saw that already. हाँ होता है. ठीक है खुश. मतलब एक बार माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने के बाद टेक के बारे में सब जानना है. टेक तुम्हारा परफेक्ट होना चाहिए. सब परफेक्शन होना चाहिए. विंडोज इंस्टॉल करना आना चाहिए. सब टेक नहीं, वो टेक में मतलब नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर भी आ रहा है. बेटा मेरा फोन गिर गया, चल नहीं रहा. हाँ तो सर नया बेटा तू ठीक कर लो, तू टेक नहीं है, तू ठीक करेगा. तो आप पहले टिकट बनाओ उसके बाद आना. हाँ प्लीज रेज अ टिकट ऑन जीरा. ओ भाई साहब. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब माइक्रोसॉफ्ट का वर्क कल्चर का क्या सीन है? मतलब इट्स लाइक इज इट लाइक फुल टाइम वर्क लाइक ऑफ कोर्स हम लोग पढ़ते हैं भाई गूगल का कूल ऑफिस, एडोबी कूल ऑफिस, फेसबुक एंड ऑल, बट आई मीन तुम तो लाइक हो उसमें और you're like still like what's your take on it? I mean considering कि तुम अभी नए नए उस कंपनी में घुसे हो और तुम्हारा भी मतलब वो जवान खून है कि तुम एक्साइटेड भी होगे टू एक्सपीरियंस दोस थिंग्स अनलाइक दोस ओल्ड वंस जो they like after 5 they're like अरे भाई घर चलो, फैमिली पास चलो, खाना वाना खाओ, like let's sit with the family and watch some TV and all those things. मतलब तुम्हारा क्या take है like how Microsoft is in terms of work environment for you guys? मतलब आई फील कि माइक्रोसॉफ्ट का वर्क एनवायरनमेंट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि लाइक वो कुछ ज्यादा ही कंसिडरेट है. लाइक वो मतलब मेरे हिसाब से तो लाइक कुछ ज्यादा ही मतलब तू कितना भी कभी भी छुट्टी के लिए दे सकते हो कुछ भी. लाइक अगर इफ यू वांट टू एडजस्ट टाइमिंग्स अपने हिसाब से कर लो, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, क्योंकि रिमोट में तो और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया. एंड ऑब्वियसली लाइक जब ऑफिस था तो मतलब वही पार्टीज वगैरह एंड वो सब भी वो अच्छे से करते ही थे, तो मतलब अच्छे से they take care of their employees definitely. तो मेरे को तो like I don't think I have any complaints. But by what I hear it's not taking care, it's pampering, man. हाँ यार I वो करते हैं. think we'll have to That is the contact right word. Microsoft. That is the right word. एडवर्टाइजमेंट लग रहा है तुम्हारा, थोड़े पैसे दो यहाँ पे, पॉडकास्ट शुरू नहीं कर दो. एक्चुअली को अब वो करते हैं वो ये सब, पता नहीं मेरे मैनेजर मेरे को कहते हैं कि तुमने एडिक्वेट छुट्टीज नहीं ली है तो तुम छुट्टी पे जाओ. मेरे को ये कहते हैं. हाँ वो होता है यार, बट फिर वो तेरे को मतलब तू अपनी फिर पेड लीव्स मतलब वो जो लीव्स डिडक्ट करने को भी कहता है. आई थिंक उस पे भी प्रेशर होता है ना उन पे, फिर एचआर उनको क्वेश्चन करता है कि तुम्हारे अंडर काम कर रहा है, छुट्टियां नहीं ले रहा, तुम उस पे प्रेशर डाल रहे हो. हाँ सो उनका एक मेट्रिक होता है कि दे नीड टू बेसिकली एंश्योर, मतलब ऑब्वियसली उनका भी रेटिंग इफेक्ट होगा इफ एम्प्लॉइज अंडर हिम और हर आर नॉट टेकिंग लीव्स. बट लाइक ठीक है, लाइक वो वैसे भी लाइक विदाउट इवन फाइलिंग ऑल्सो भी कभी कभी लाइक काफी सारा मैनेजर चिल होते हैं कि अच्छा ऐसे ले लो कोई बात नहीं, जब व्हेन यू टेक अ लॉन्ग वेकेशन तब फाइल कर देना, ऐसे करने की जरूरत नहीं है. तो मतलब डिपेंड्स ऑन मैनेजर टू मैनेजर. तो मतलब उसके हिसाब से कभी लीव्स कम नहीं पड़ती बेसिकली. यू नेवर हैव शॉर्टेज ऑफ लीव्स, बहुत लीव्स होती हैं. यार देख फंडा सिंपल है, काम हो जाना चाहिए. अब वो तो सब कर ही लेते हैं. मतलब इतना अगर माइक्रोसॉफ्ट में तुम एम्प्लॉयड हो, यू हैव द कॉम्पिटेंस एंड यू हैव द इंटेलेक्ट टू एक्चुअली डू द स्टफ दैट यू आर सपोज्ड टू डू, राइट? सो इट डजंट मैटर कि तुम कितना छुट्टियां ले रहे हो नहीं ले रहे हो, मतलब you will get it done, that is for sure. मतलब that is what the managers actually have the belief about every of his direct reportees, right? His or her reportees. So हाँ मतलब वही है. मतलब it's not necessarily कि तुम उसी एक पूरा दिन छुट्टी ले लो. तुम you can be like कि I'm not in the mood to work in the first half, I'll start working after lunch. So ऐसे भी situations काफी बारी हो जाते हैं and it's quite flexible. मतलब I feel it really makes you empowered and basically you feel belonged to a group basically.
समझ रहे You don't have a gun to your आजा- head all the time. ये जो हाँ, बोला ना, ये जिस तरह बोला ना, यू फील बिलोंग्ड, मेरे को पता नहीं वो शारदा यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट याद आ गई। द वर्ल्ड इज एट शारदा, वेयर द हेल आर यू? Very wet. Very wet. दुनिया यहाँ बैठी, तू कहाँ पे है? खुद को क्वेश्चन करो, हाँ भाई मैं कहाँ पे हूँ? मैं work अभी from क्वेश्चन home किया पे हूँ। मैंने। अभी शारदा भी वर्क फ्रॉम होम में होगा तो नहीं but एक चीज और है कि लाइक अभी तो हम लोग क्योंकि स्टार्ट आउट कर रहे हैं, राइट, तो अभी हमारे इतना कोलैबोरेशन है नहीं, लाइक हमें खुद से ही करना होता है, राइट, वी विल गेट सम टास्क, वी विल बेसिकली ब्रेनस्टॉर्म, खुद से रिसर्च करेंगे एंड इम्प्लीमेंट कर देंगे, सो दैट इज लाइक अब अपने खुद से हिसाब से कर सकते हैं, कभी भी कर लो, बट व्हेन यू आर वर्किंग विद अदर पीपल एंड वो करना है तो तुम्हारी मीटिंग्स होती हैं, जैसे आई हैव सीन सीनियर्स जिनका दिन भर मीटिंग होता रहता है, तो क्योंकि उनको करना पड़ता है वो, क्योंकि वो इतने सारे एफर्ट्स में, इतने सारे उसके साथ में, तो आई फील कि जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा तो वर्क कल्चर पे थोड़ा फील होने लगेगा कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो आई फील जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा लाइक अप द लैडर तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, बट आई थिंक दैट्स ट्रू विद एनी जॉब, तो ठीक I है। think if you collaborate with anything, there is a lot more conversation supposed to happen, right? तू अगर अकेले बैठ Exactly. के collaborate नहीं कर सकता, तो miscommunication होगा। तू अगर किसी और country में and तू you just able to get a few hours of direct contact, तो miscommunication होगा, और वो miscommunication सही करने में एक दिन लगता है फिर। I think वर्क फ्रॉम होम सेटिंग में और भी लगता है, मतलब वो और भी लगता है, right? वो एक lag होता है जिंदगी में। आई थिंक हाँ, मिसकम्युनिकेशन से ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि ग्रोथ भी नहीं होती एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की। तुम्हें को एक नया पर्सपेक्टिव ही नहीं मिलता कभी सोचने को या देखने को या समझने को। तुम अपने ही पर्सपेक्टिव पे लगे, मतलब उसी पे घिसे जा रहे हो, तुम नई चीज एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे। और कंसिडरिंग अभी हम चारों ऐसे यंग उसमें हैं, मतलब हैं, तो मतलब वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली इम्बाइबिंग, राइट, कि व्हाट्स गोइंग अराउंड अस एंड लर्निंग एंड मे बी ग्रोइंग बियॉन्ड दैट। तो आई थिंक कोलैबोरेशन का वो बहुत मेजर एडवांटेज है। यार लेकिन ये दिस इज वन ऑफ द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ दिस वर्क फ्रॉम होम सेटअप, पता है, मतलब व्हेन यू आर अराउंड इन एन ऑफिस, जनरली क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर आईटी कंपनीज में तुम्हारा जो वर्क सिटिंग सेटअप होता है, इट्स बेसिकली लाइक अ बुल पेन, राइट? ज्यादातर बुल पेन पता होगा, इट्स एन ओपन ऑफिस बेसिकली, राइट? कैबिन्स नहीं है, ओपन ऑफिस। हाँ, तो इट्स लाइक कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हुआ या फिर इफ यू हैव अ डाउट और यू हैव अ क्वेश्चन, सो यू जस्ट इमीडिएटली टर्न अराउंड, तुम्हारे पीछे देयर इज अ सीनियर गाय सिटिंग विद लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, यू आस्क हिम, ही इज और हर, एंड दे आर लाइक हाँ ऐसे ऐसे कर लो, गिव सम रियली कूल इनसाइट्स एंड देन यू आर डन। तो दैट थिंग इज मिसिंग। बेसिकली तुम्हें पिंग करना पड़ेगा पहले कि आर यू फ्री, आर यू देयर, फिर वो रिप्लाई आएंगे 5 मिनट बाद, फिर देन यू सेट अप द कॉल, फिर देन देयर इज आल्सो दैट लैग उसके बीच में। आई थिंक वो तेरे फेस पे ही बड़ा नाइसली आंसर करता है। मन ही मन सोचोगा क्या चूतिया सवाल पूछा है इस लड़के ने मेरे से। हटा यार इसको, हटा। Unfortunately, they have to deal with it, but हाँ, But yeah, नहीं, just joking, of course, man. नहीं, अगेन ये ओपन ऑफिस स्पेस, ये कंसेप्ट काफी टाइम से काफी जगह इम्प्लीमेंट हुआ है, राइट? एंड द आइडिया बिहाइंड इट, द आर्किटेक्ट, मेरे को नाम नहीं पता, ही वाज लाइक वी रिमूव बाउंड्रीज ऑफ द स्पेस, ideas people are more the flow of ideas there. I think it's more like cutting off that जो तूने boundaries वर्ड बोला ना, boundaries to removing the boundaries of the hierarchical system. हाँ, hierarchical Exactly. system, because the bigger people have a bigger cubicle, or at least they have a cubicle. Now no one has a cubicle, right? Everyone gets to work at the same place, and even in IT space में हो तो mostly I think दो screens ही होगा. You don't have even a set assigned place probably. But Indian culture में I think Indian नहीं, mostly सारे culture में I think it also means less space required to put as many people. economical space बचाओ, धंधा बढ़ाओ, and hierarchy तो चलती रहेगी, वो तो हम boundary थोड़ा चाहिए मेरे को। बस तू एक बार मेरे को एड्रेस करने से पहले सर बोल देना, वो सर बोल दे बस, सर बोल दे। नहीं, but again you don't have to call anyone sir. Yeah, no, IT में this is not very anymore. big, not at all. frowned upon. It's almost frowned upon. नाम से No, I actually when I started working in this place, I called my second manager sir, and one of my friend was like, "तूने sir क्यों बोला sir?" One of my employee नहीं, one of my co-worker came up to me and said, "तू sir क्यों बुलाया उसे?" तूने बोला था कि भैया बोलो क्या? हाँ, क्या बोलूं मैं उसे? तो नाम से बोला, first name only. Then say I have been calling him first name. और in fact मेरे को initially
when I अजीब started off लगता है calling him first name, बहुत अजीब लगा कि मैं क्या बहुत बोल अजीब रहा हूँ लगता है उसे. यार देखो पता है मैं एक्चुअली में अपने लंदन मेरे लंदन ऑफिस में से एक बंदा है पॉल ठीक है ही इज लाइक 55 56 एंड ही हैज Right. लाइक मतलब ही इज लाइक दैट पर्सन कि तुम इसको इक्विपमेंट दे दो ये अकेला बैठ के पूरा एयरक्राफ्ट बना देगा मतलब ये इतना इतना लर्नर्ड इंसान है एविएशन इंडस्ट्री का ठीक है और मैंने उसको ऐसे ही बोला सर और मेरे को भी सेम मतलब एक लुक्स मिली अच्छा यहाँ पे यूके में दे काइंड ऑफ समटाइम्स कैन टेक इट एज एन ऑफेंस कि सर कैसे बोल दिया टाइप्स ठीक है कुछ सर इज सेड विद सर एज अ ग्रीटिंग इज गिवन टू समवन जो जिसने बहुत कुछ उखाड़ा हो कभी कभी और कभी कभी सर लोग सटायर की तरह भी बोलते थे किसी को कि ठीक है उस तरह Sir is a proper knighthood, right? knighthood ऐसा कुछ होता है ना सीन होता है ना. हाँ हाँ मतलब अब Yeah, I जैसे think it's knighthood, right? हाँ. हाँ knighthood तो होती है तो अब मैं जैसे मतलब ऐसे बोलूँ ना ओ या व्हाट डज सर थॉमस से अबाउट इट तो यहाँ पे एक सटायर आ गया तो अगर yes. उस तरह बोला जाए तो उस Yes. तरह उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है तो मैंने भी सर बोल दिया था तो मेरे को एक दो बंदे ने ऐसे लुक्स दी तो मैं इमीडिएटली आई कॉट कि ठीक है मैंने कुछ मिसअप किया है अब नेक्स्ट टाइम भाई पॉल है भाई वो 55-60 साल का है मैं 20-25 का मैं 25 का भी नहीं हूँ मेरे ना मुंह से वो लंदन में मैं उसको पॉल के बाद जी बोलने वाला था मैं मतलब पॉल जी A Paul. A Paul. पॉल जी एक क्वेश्चन था जरा सुनिए तो मतलब बहुत awkward था यार एकदम बूढ़ा सा इंसान है मैं उसको क्या बोलूं और बट फिर वही अब बोलना है पॉल पॉल हे पॉल थोड़ा मतलब अपना accent में डाल दिया बस. But 55 is not old, man. That old. I mean, they're still. नहीं नहीं I mean Five okay is old, yeah. I mean ठीक है Yeah? दिखता है No, यार it's not old, man. I mean, Indian I, public Yeah. retirement के हिसाब से you're 5 years away, so you're pretty yeah pretty man old. and for as per some POCs you're just 2-3 years away कुछ 58 पे भी रिटायर Yeah, कर देते yeah. हैं Exactly. वॉलंटरी रिटायरमेंट के नाम पे voluntary retirement. हमने तुम्हें नहीं निकाला तुम खुद निकल रहे हो निकल रहे. See, before I fire, तू हाँ, quit हो जा. ये लो प्रोविडेंट फंड में 10% एक्स्ट्रा रखो बट निकलो That's very sad to say, though. That's very sad to say. Sorry, yaar. That's very Sorry, sad to sorry, say. sorry, uncles, sorry, G's, but yes. भाई प्राइवेट कंपनीज में यही तो होता है फ्रीज आउट कर देते हैं भाई जो भी एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर रहा फ्रीज आउट कर दो उसको इवेंचुअली छोड़ना ही पड़ेगा नहीं तो क्या Freeze करोगे? out Freeze out मतलब? मतलब जनरली ऐसा होता है ना लाइक इफ यू आर परफॉर्मिंग तो तुम्हें और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते जाएंगे तुम्हारा काम बढ़ता जाएगा बेसिकली एंड ऑब्वियसली उसके प्रोपोर्शनेटली पे वे बढ़ेगा बट इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग तो देन कंपनी स्टार्ट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम यू लाइक तो थोड़ा कम काम देना शुरू कर देंगे देन दे विल ट्राई टू बेसिकली मतलब फिर वो हो गया ना उनका कि अब उनके पास इंसेंटिव कम बचा उनके पास काम करने को कुछ नहीं उनकी ग्रोथ रुक गई तो फिर उनको ज्यादा ही But पड़ेगा if a person doesn't want to grow and वो उसका पैसा reduce तो नहीं कर देंगे ना. हाँ वो है वो तो है So you can chill it out, right? मेरे दिमाग में ना मतलब थोड़ा ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रिमार्क है बट ठीक है I'll make it. Americans think like this about the Queen of England कि है है वो सब है बट वो कुछ नहीं कर सकती तो बट ऑन द सीरियस नोट भाई मतलब कुछ लोग who are not motivated to work anyway और उनको बस पैसे से मतलब उनको क्या फर्क पड़ेगा उनके लिए तो अच्छा ही है पैसा मतलब काम नहीं करना पैसा मिल रहा है फायर क्यों नहीं कर रही कंपनी कि लेकिन there's a Fire feedback. करना puts a bad thing on their I mean the Companies, company attrition. fires attrition rate. attrition rate मतलब I कोई mean, दिक्कत doesn't नहीं matter Also to feedback them. loop goes around, ना? if क्या? someone अच्छा क्या बोला कौस्तभ Okay, feedback loop पहला. फीडबैक लूप हाँ हाँ, what I was saying was कि there's a feedback loop going on, ना? तो वो track तो सबका रहता ही है. Who's performing, who's not. No, actually, उनका fire करना is a bit too harsh, I think, for a private company as big as any MNC or Microsoft. Probably to maintain them is nothing. उनको काम मत दो, गलती हो गई तो गलती भुगतना पड़ रहा है अब to get them in, but you know just sideline them. It doesn't matter to them anymore. आई in थिंक fire हाँ करने हाँ, मतलब वही. the thing is कि फायर करने में बेसिकली सेवरेंस पैकेज वगैरह और ये सब मतलब इट्स मोर कॉस्ट टू द कंपनी अगर कोई खुद लीव करेगा तो फिर इट इज लाइक कम कॉस्ट भी पड़ती है कंपनी को तो दैट्स व्हाई आल्सो दे ट्राई टू अवॉइड किसी को फायर करना खुद ही चला जाए वही है ना भाई आई थिंक कोई बंदा मतलब in a big company like Microsoft ऐसे किसी को पैसे ऐसे फोकट में दे रहे इट्स लाइक टेकिंग अ ड्रॉप आउट ऑफ एन ओशन आई मीन इट्स अ प्रीटी बिग कंपनी मैन उनके पास कमी तो है नहीं तरह फंड्स की और ऊपर से आजकल ये भी तो चला ना बेस्ट प्लेस टू वर्क
तो वो आइडियोलॉजी पे फिर नॉट You can't fire people randomly. Yeah, Then to you're avoid not the best place to work. yes, exactly, to avoid getting fingers pointed at you, I think you'll ensure not getting into that zone at the first place कि ठीक है भाई है काम नहीं दे रहे हम उसे तो बैठ बस ठीक है। passive aggression ही है बस बट फायर नहीं हो रहा। तो फिर ऐसे इंसान को मतलब ऐसे एम्प्लॉय को क्या वो ईयरली वो मिलेगा वो जो एक इंक्रीमेंट होता है या प्रमोशन सब हो जाएगा। मिनिमम Minimum. मिलेगा, बिल्कुल मिनिमम। Minimum, देयर इज हाँ। बार आल्सो ना, इन इंक्रीमेंट्स आल्सो देयर इज लेवल्स कि अच्छा हाँ। काम करो तो और ज्यादा नहीं तो कम, तो उसको बिल्कुल मिनिमम देते रहेंगे। हाँ तो बोनस जो कहते परफॉर्मेंस बोनस में दे से ना कि 0 to X% ऑफ योर बेसिक सैलरी, तो उसमें 0 इज इंक्लूसिव बेसिकली। ओह अच्छा 0 पे ये मुझे नहीं पता था ये। इंक्लूसिव होता है भाई। हाँ। उन्होंने ऐसे लिखा होगा एस्टेरिस्क डाल के नीचे पेज के छोटे से टेक्स्ट में लिखा 0 इज आल्सो इंक्लूसिव। पाया तो नहीं बुरा ना। लगेगा यार किसी को Obscure बताने में, कर आपका इंक्रीमेंट 0 है, ठीक है। मैनेजर पूरा मतलब they set up a meeting and all and they were like यार सही में 0%. The आप cost to वही set up हाँ, that meeting was higher. सर एक भी नहीं ना 0। अरे चलो एक चाय पिला दो मेरे को। तो सर कल रिपोर्ट दी थी मैंने ना 2 हफ्ते लेट था तू। But yeah. गॉड मैन शिट। हाँ तो जनरली मतलब ये ऑफर लेटर में डाल देते हैं कि अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस सही नहीं हुई तो पहले तुम्हें कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में डाल देंगे या फिर मतलब ऐसे जिससे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, एंड ये सब चीजें मतलब पहले इनरोल करते हैं सब चीजों में, एंड दे डू अ बंच ऑफ स्टफ बिफोर दे फाइनली टेक अ ड्रास्टिक डिसीजन। तो बहुत लेटेंसी होता है इसमें, और जनरली दैट पॉइंट डजंट इवन कम in a lot of cases, मतलब mostly बंदा major जिद्दी होकर मेरे को फायर करो मतलब तब तक नहीं पहुंचेगा मतलब। हाँ वहां तक नहीं पहुंचेगा। उसके पहले people start pulling up the socks, so हाँ yeah gets better. बट वो बंदा माइक्रोसॉफ्ट का नाम दिखा के कहीं मूव भी करेगा तो भले उसने काम कितना किया, लोग सीवी पे तो कुछ भी लिख ही देते हैं कि मतलब ये किया वो खड़ा मैं ही तो कंपनी चला रहा था, वो सब कौन है, मैं ही तो सब हूँ। मतलब अरे तो भाई उसके बाद उसको कहीं ना कहीं तो अच्छा लग ही जाएगा इवन आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट टाइट लाइक नेम इन हिज और प्रोफाइल। लेकिन वो पीछे कांटेक्ट भी करेंगे ना। अच्छा वो लाइक वो क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में सब पीछे प्रीवियस एम्प्लॉयर से पूरा प्रॉपर एक वो होता है। वो पूछेगा इसको इंक्रीमेंट कितना मिला था पिछले 0। अबे यार हटा भाई, काम की बात हटा, बहुत हो गया मेरे को। मतलब लिटरली अभी मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है अभी एकदम गरम, आके भी खाना बना के खा के मैं बैठा हूँ। रहो बेटे अकेले रहो। हाँ फाइनली अपने ग्रुप में बस सिद्धांत को खाना बनाना आता है शायद से। तो कौशल तेरे को आता है कुछ बनाना? चाय बनाना आता है तेरे को? चूतिया बनाना आता है इसको। खुद का भाई बनाना बहुत आता कुछ आता है, ऐसे मत बोल भाई। चल ठीक है शुरू कर, क्या बना सकते हो? आई थिंक इंडिया में जरूरत नहीं है खाना बनाना आना, बाहर जाके मतलब इंडिया में तो कोई जरूरत नहीं है भाई। कोई जरूरत नहीं है। मतलब नो ऑफेंस, कुछ ना हो तो गुरुद्वारे में लंगर तो है ही ना, खुला ऑप्शन खुला है। इतना कोई गिरता नहीं है, इतना जाने की जरूरत नहीं है, मगर इससे पहले खाना मिल जाता है। नहीं लड़का माइक्रोसॉफ्ट में अफोर्ड कर सकता है, वो अफोर्ड कर सकता है मतलब। नहीं अगर आई थिंक बाहर जाने वाले लोग ज्यादा मतलब दे आर लिविंग द पॉश लाइफस्टाइल बट दे आर कुकिंग फॉर देमसेल्व्स, दे डोंट हैव अ मेड। नहीं है, यही तो सबसे बड़ा मिथ है भाई, पॉश लाइफस्टाइल नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये मिथ है बट बैठ के खाना पका रहे हैं। हाँ यार मतलब मेरे को हद की बात ये लगती है, मम्मी का जब भी फोन आएगा ना, जब हर दिन फोन आएगा ऑब्वियसली, हर दिन फोन पे एक ही सवाल, खाने में क्या खाया, क्या अच्छा क्या बनाया, ये बनाया। मैं तेरे को क्या कहती हूँ, तू सूजी को ना ऐसे ऐसे कर, उससे तू वो बना, वो चीला बना सूजी का तू। अरे यार सॉरी चीला तो बेसन, पता नहीं, मैं तो इतना भी मेरा दिमाग एकदम वो हुआ पड़ा है। बट मतलब मेरे को हर दिन कुकिंग की टिप्स। आज तू खाने खरीद के क्या लाया, टमाटर ले आया, प्याज ले आया, मैं तो कहती हूँ तू ग्राइंडर खरीद ले, ग्राइंडर सब्जी अच्छे से कटेंगी। मैंने अरे भैया यार कोई और बात जल्दी खत्म करना है, ये द आइडिया इज टू फिनिश इट एज क्विकली एज पॉसिबल। एग्जैक्टली इसलिए देख, मतलब अकेला इंसान नहीं मन करता भाई रोटी, मतलब आटा गूंदो, मतलब कितना मुश्किल काम है भाई। फिर बेलो, फिर तवे पे डालो, उसके लिए तवा खरीदो।
नहीं कर रहा भाई इतनी मेहनत, मैं बाहर जाऊंगा एक मेडिटेशन लेटेंट एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, बहुत लेटेंट एक्सपेंसेस, मतलब नॉट मॉनेटरीली, मतलब टाइम देख हाँ। भाई, एफर्ट देख भाई, फालतू की एनर्जी लगती है। मैं सबवे खा लेता हूँ, वेरी हेल्दी। वेरी हेल्दी। वेरी हेल्दी। सर सबवे में अगर तुम्हारे को इंटरेस्ट सबवे की सॉसेस और सबवे के अंदर में जो डालते हैं उसमें है, तो सब मत खाओ, सैलेड खाओ, सीरियसली नो किडिंग, वो ज़ारा मिलता है उसमें, सैलेड में हमेशा नहीं बट आई थिंक द होल पॉइंट की ये सब हेल्दी है, वो हेल्दी नहीं है, ये सॉसेस आर द सीन मैन। सॉसेस आर द सीन आई मैन, मीन भरा होता है सॉसेस जितना डालते हैं उसमें पॉइंट क्या हुआ फिर। पॉइंट सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। इट वाज जस्ट अ मार्केट प्ले यार, उन्होंने बहुत Market play, इंटेलिजेंटली अपने आप को हाँ। हम फ्रेंडली, हम बहुत ही हेल्दी हैं, आ जाओ, और फिर बस तो चल रहा है उनका अच्छे से उसके। फिर मार बट रहे हैं मतलब। कॉस्टव आल्सो कुक्स, तो कॉस्टव बताएगा कि क्या कुक करता है वो। हाँ तू भी तो बनाता है, क्या बनाता है भाई? देख, मैं चाय बना सकता हूँ, मैगी बना सकता हूँ। अबे यार अबे इससे पहले तो ठीक यार है, मतलब मिक्सर अगर तूने पॉपकॉर्न बोला ना साले, मैं फ्लाइट पकड़ के पेल जाऊंगा तेरे को। नहीं। और फ्लाइट serious पकड़ के note पे, क्वारंटीन में बैठ के मारेगा। हाँ क्वारंटीन में आऊंगा, बैठ के भाई पेल के इधर आना जाऊंगा। होटल पे। आ जाओ दिया, खाना खिलाऊं तेरे को मैं। दो चीजें इसने बोली, चाय और मैगी। या फिर कुछ कुक कर रहा होता ना, कम से कम दाल चावल, सब कम से कम चावल बोल देता है ये। यार देख, मेरे को ना कुकिंग, मतलब आई डोंट थिंक इट क्वालिफाइज एज कुकिंग, बट बेकिंग इज समथिंग व्हिच आई लाइक। मतलब इट जेन्युइनली इंटरेस्ट मी। मतलब केक वेक बना लेते हैं थोड़ा बहुत, हाँ, अच्छा खासा। केक के अलावा और क्या चीज बेक होती है? ब्रेड्स भी बनाता है तू? ब्रेड्स भी बना सकता हूँ, हाँ। कुकीज होता है बेक। बना सकता हूँ, बना बना तो मैं सकता तो बनाया नहीं है। बनाया नहीं है। रिज्यूमे अच्छा होना पॉसिबल है। चाहिए। पॉसिबल है। क्या कुकी बेक हो सकता है? हाँ हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। आई डोंट सी व्हाई। But yeah, but I think Optimistic man. this is something that you developed after your quarantine started, right? You had to keep yourself busy, and केक तब से बन रहा है या नहीं पहले नहीं, से मैं बन रहा है केक तेरा? तो काफी पहले से बनाता हूँ। केक तो काफी पहले से बनाता हूँ। क्या बात कर रहा है साले? बट बनाता भाई तुम लोग को कॉलेज में खिलाया लाता भी तो है कितनी बारी, तुमको याद ही कॉलेज में नहीं लाता है। है। अनग्रेटफुल थॉमस लाता है ह्यूमंस। भाई केक, थॉमस लाता है भाई केक। थॉमस थॉमस तो लाते क्रिसमस में लाता है, उसके अलावा कभी लाया है? और एक ही बार लाया था वो। कम से कम लाया तो नहीं भाई, मेरे घर में तो आया एक दो बार। तू कब लाया बे? लाया हूँ भाई, कितनी बार हम अपने दोस्तों के वहां पे मिले हैं, तो कितनी बार तो मैं लाया हूँ। नहीं, लाया, हाँ, सॉर्टेड है, हाँ। पता नहीं, आई उस दिन आई मैं नहीं था। हो अच्छा गया। नहीं, मैं नहीं, मैं उस दिन मैं नहीं था, करेक्ट, हाँ मैं नहीं था वहां पे, हाँ वो ठीक है। कभी दैट इज हुआ योर होगा। फॉल्ट। That is your fault actually. मैं He मैं actually bakes good cake. मैं तब भी I क्वारंटीन में था। completely forgot. But चल, वैलिडेशन मिल गया मेरे को। चल, आई एम डन। केक बनाता। कार्तिक तू क्या करता है? बर्तन धोता है? नहीं। डिश वॉशर में? डिश वॉशर है भाई, इसके पास डिश वॉशर है भाई। हाँ, क्या देख बात क्या हो कर, गया। सही में डिश वॉशर है भाई सोफिस्टिकेशन भाई। कार्तिक के घर में, भाई रहीजों का घर में है भाई डिश वॉशर। इंडिया के घर में डिश वॉशर किसके घर में होता है इंडिया में? तो सही भाई है, dude। जरूरत थी ना यार घर पे, अबे मतलब अब जरूरत क्या होती है कितने- पागल? जरूरत होती है नहीं, नहीं, पानी की, जरूरत होती है पानी की, बर्तन मांजने वाले उसकी, और अगर मैं और अपना किल। काम आसान कर सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं करूंगा, ये बताओ। सिंपल। अब इसको काम आसान करना नहीं कहते, इसको काम ना करना कहते हैं। क्यों नहीं बस करता? ठीक है, बाय चॉइस मैंने नहीं करा। बट वो ये कि क्वारंटीन हुआ था तो कोई नहीं आ रहा था, हमने सोचा खरीद देते हैं, एफर्ट कम हो गया। तो भाई मेहनत लगती है, ठीक है, बर्तन धोने में अच्छा होता है अगर डिश वॉशर हो तो पता भाई चलता है मैंने डिफरेंस। पहली बार सुना है इंडिया में किसी के घर पे डिश वॉशर, में मजाक नहीं नहीं कर नहीं रहा यार, हूँ। आजकल लोगों के पास है। मैंने हैदराबाद में एक घर ढूंढने गया था, दोस्त के साथ गया था। नहीं मतलब 2 BHK अपार्टमेंट गया, एंड इसमें फुली फर्निश्ड उसने बोला। तो मैंने बोला क्या क्या है बताओ। तो उसने वॉशिंग मशीन है, लगे हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो उसने फिर बोला कि एसी वेसी है, नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत लाइक डिश वॉशर है, इसका मैं क्या करूंगा? इसका क्या करूंगा मैं? और दिखा रहा है मेरे को, मतलब प्रॉपर बॉश का एक डिश वॉशर है, इसका मैं क्या करूंगा? यूएसपी है भाई, ऐसे ये ऐसे हाँ कोई यूएसपी है। मैं अपने कभी कभार, हम लोग ऐसे डिनर पे जाते थे ना जब यूके में किसी दोस्तों के घर पे या किसी अंकल के घर पे, तो यहाँ पे लोगों को कुछों के डिश वॉशर्स नहीं होता, और यहाँ पे ऐसे काम वाली बाई भी आती नहीं कि वो कर दे, धोना लोगों को खुद है। तो भाई कोई डिश, मतलब डिश में खाना ही नहीं देते, वो डिस्पोजेबल में दे देंगे तेरे को खाना, ये तो बाहर फेंक दे, हम धोने से रहे भाई। ये तो नहीं हो रहा। तो यार ये थोड़ा ज्यादा गिर जाता है, मतलब नहीं, ये ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखा है मैंने होता हुआ, लाइक लिटरली डिस्पोजेबल प्लेट्स में लोग खाना खिला रहे हैं तुम्हें।
पता नहीं भाई, फील नहीं आती मेरे को डिस्पोजेबल में। तो खड़े रह के खाओ, उसमें भी ज्यादा चम्मच मारो तो प्लेट के अंदर से छेद हो जाता है, फिर दाल क्या करता है, लड़ाई करता है क्या प्लेट में? नहीं नहीं आती यार, डिस्पोजेबल शादी नहीं वाली आती वाइब आती है। शादी के में मंडप में बैठ के ऐसे मेले पे कहीं खा रहे हैं, फील नहीं आती वो तो है। भाई नहीं आती भाई। डिस्पोजेबल मतलब डिस्पोजेबल प्लेट सुनते ही दिमाग में भंडारे आते हैं मेरे, मतलब legit Exactly. भंडारे, हाँ। पूरी छोले, पूरी आलू हलवा, बस यही भंडारा। डिस्पोजेबल और गुलाब जामुन, और गुलाब गुलाब जामुन जामुन। और फिर गुलाब जामुन भी इतने तैर रहा है। साला, मतलब तू एक हाथ से ऐसे डिस्पोजेबल प्लेट पकड़ेगा, जैसे ही कोई बंदा वो उसके कोने कोने वाले उसमें सॉकेट कह रहा था मैं, पॉकेट में प्लेट की, वो उसमें गुलाब जामुन डालेगा, भाई पूरी प्लेट डिसबैलेंस हो जाती है। वो बस एक पेपर है, वो एक पेपर है, वो एक पूरा फुल ग्रोन प्लेट नहीं है, वो एक पेपर को बस फोल्ड कर दिया बस, ढंग से हैंडल अगर तो हो जाएगा खराब। अरे भाई सही है, उस सबसे तो But I बनाना think- लीफ भी बुरा नहीं है। ये बनाना लीफ उठा के नहीं खाना होता, रख के रहना होता है। बैठ जा भाई, तू बैठ जा, बैठ जा भाई, तू बैठ बिछा चल कर देते हैं। थोड़ा। हाँ, तेरे लिए चिटाई नहीं बेचेगी, बट बनाना लीफ Banana leaf. बिछाएंगे। ये कुछ साइकोलॉजिकल मान लो, बट बनाना लीफ से खाने का टेस्ट कुछ अलग होता है। When was the नहीं last होता time है, you had a actually meal out होता of है। banana leaf? हाँ? When was the last time you had a meal out of banana leaf? Last Feb, I went to Assam, so उस टाइम पे Right, आसाम में, आसाम आसाम में में भी बनाना लीफ होता है, हाँ। आते हैं। हाँ, ये it's a- मैंने it's a- ये मैंने तूने देखा नहीं बैम्बू था। बियर पिया वहां पे? तूने तो पी ही होगी भाई। हाँ हाँ हाँ, पी रखा है। तो तुम्हारे वहां भी तूने ऐसे तो बोलते पी हैं, हुई। बम्बू कर देंगे तुम्हारा, लगा लो कर दो भाई, बियर ही तो मिलेगी टाइप का, ऐसा नहीं बोलते तो? नहीं, ऐसा नहीं बोलते। और एक फेस्टिवल भी होता है ना, Yes, बैम्बू नहीं बोलते। फेस्टिवल प्रॉपर, जिसमें प्रॉपर मतलब ग्लासेस भी बैम्बू के बनते हैं, फिर उसी बैम्बू हाँ, से it's a बियर पूरा भी। प्रॉपर मतलब बैम्बू थीम फेस्टिवल। तुम्हारे डांस वगैरह में भी एवरीथिंग इन्वॉल्व्स बैम्बू, मतलब वो बेसिकली प्रॉप्स हो जाते हैं, एंड देन तुम्हारे फूड में भी बैम्बू होता है, फूड का जहाँ कुक होता है वो भी बैम्बू का होता है, तो it's पूरा बैम्बू बेसिकली। दिन की बम्बू मिलती है मतलब पूरी। सही है, I think सही है। local हम brew कैसा होता है? Do you get high? काफी हाई होता है But या to be honest, मैंने बस इतना ट्राई नहीं किया। I just had it for the मतलब Sake of it. experience, but just हाँ, sake same of it. it. Even Kerala local brew. साइड में पापा बैठे थे। अभी तो बैठे हैं। Ooh, yeah. Okay, viewers, listeners, समझ जाइए अब। हाँ, मैं भी सुनो, अब तक कॉस्ट मतलब मैंने 3-4 गालियां दी थी, कॉस्ट अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं है? अब सारी चीजें फिर इतना सोफिस्टिकेटेड बंदा साउंड कर रहा है पिछले 1 घंटे से। ये है नहीं भाई, है नहीं, कतई नहीं है। वो तड़प रहा है बोलने के लिए, वो तड़प रहा है, समझो। तड़प रहा है। मतलब हाँ, काश। एक्चुअली व्यूअर्स को हिस्ट्री दे देते हैं। कौस्तभ की अभी करंट लुक्स ये हैं कि कौस्तभ के जो बाल हैं उसके कंधे से नीचे तक आए हुए हैं, ठीक है? बाकी अपने आप जज कर लो क्या हो सकता है। किस लेवल का है कौस्तभ। भाई साहब, अरे यार बैम्बू बियर मुझे भी ट्राई करनी है यार। यार हम कभी इतने साल मतलब we were in school together and काफी साल से जानते बोल हैं। रहा हूँ ना? हाँ एग्जैक्टली, हाँ, हाँ। मेरे को पता था यहाँ पर आएगा। ट्रिप हाँ ट्रिप करो भाई, बिल्कुल करो भाई, ट्रिप जाना चाहिए सबको, यार जाना मतलब चाहिए। हमने एक टाइम पे कभी तो हमने बहुत अच्छे से प्लान भी किया था ना कि स्कूल ये कब खत्म हुआ? होने के बाद जाएंगे कभी एक टाइम अच्छा। पे नहीं, मतलब कभी एक नॉर्थ time ईस्ट पे नहीं, नहीं बहुत करा था। टाइम्स एक्सप्लोर पे, बहुत करेंगे। टाइम्स पे किया है यार, कम ऑन। किया है यार। नॉर्थ ईस्ट किया है, गोवा हाँ, मतलब किया है, स्पेन किया है, हैदराबाद किया है, मैं बता रहा हूँ देखो, केरला किया है, बैंगलोर किया है, मानेसर पे गिर गए थे हम लोग कि चलो मानेसर ही जाके होटल आ जाओ। फाइनली जाके कर लो। फाइनली जाके मोटल पे पराठे खा के आए थे। वो भी हम 4 गए थे यार। हाँ, नहीं, हम जो exactly. प्लानर्स थे वो कार्तिक, मेजर हाँ। वाले नहीं गए थे। कार्तिक तो हटू नहीं। कार्तिक भी नहीं गया था। ठीक है। भाई मोटल की कहानी अलग थी भाई। मैं पता है एक दिन पहले डैड पास गया, डैड गाड़ी दे दो, डैड प्लीज i20 दे दो, डैड प्लीज i20 दे दो। ना मैं नहीं दे रहा, तुम लड़के लोग जा रहे हो, मुझे डाउट है। अरे डाउट क्या है, मतलब गाड़ी की उनको गाड़ी की चिंता है, लड़के ही लड़कों को फिर जाने से मना कर दो ना, गाड़ी को प्रॉब्लम है, तुम लोगों को जाना तुम मरो, गाड़ी को भाई वो मैं अपने मतलब- भाई की ऑल्टो लेकर आया था। ऑल्टो में हमने 100 किलोमीटर चलाया, ऑल्टो का हाल फट चुका था। हाँ, ऐसे उड़ने वाला था वो, थोड़ा सा प्रेशर में तो उड़ जाता है ऐसे। हाँ, और एकदम 5 लोग ठुसे हुए थे उस गाड़ी में, लाइक ठुसे हुए ओ थे सही है। भाई साहब। वो हॉट ह्यूमिड एकदम, जस्ट बारिश होके गया है, हॉट ह्यूमिड समर डे जुलाई में, एकदम मस्त। हम 4 लोग निकल के पराठे खाने निकले। एसी चलता नहीं है अल्टो का। वो हाँ। मुझे याद है, अपने गैंग में एक लड़का अपने घर में बोल के आया मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। और हमारे साथ आ गया।
घर वाले कॉल कर ले अभी भी खेल रहा हूँ पराठे खा रहा है हमारे साथ। एंड में एक्चुअली तुम लोग पता है कि नहीं पता नहीं, बट एंड में उसके जब वो वापस पहुंचा घर तो उसके डैड ने फिर फाइनली पूछा तुम तो वहीं गए थे ना जहाँ पे तुम जाने बोल रहे थे। तो फाइनली पकड़ा ही गया। हाँ पकड़ा गया। अच्छा तो वो इनिशियली ऐसा था कि पापा मुर्तल जाना है, नहीं जाओगे तो चलो फुटबॉल खाने खेलने जाके दो मेरे को। ओके घर से किसी तरह बाहर निकल जाओ मैं देख लूं। उसके बाद चांद जाओ। फुटबॉल में था अच्छा चलो तुमको लिफ्ट तक को जाने दो। बट आई थिंक हमारे पेरेंट्स का एटीट्यूड काफी चेंज हो गया। मतलब बचपन में बचपन एज इन फ्यू मंथ्स अगो तब तक मेरे पेरेंट्स वर लाइक यू नो तू कहीं नहीं जाएगा। अब ऐसे नहीं होता। अब तो हाँ जा रहे तो एटलीस्ट वापस आ जाइए। यू नो द थ्रेशोल्ड हैज इंक्रीज्ड काफी इंक्रीज हुआ है। जॉब लग गई ना इसीलिए हो जाता है। जॉब लग गई है। नहीं भाई पर्सपेक्टिव बदल जाता है भाई बिल्कुल। पर्सपेक्टिव बदल जाता है। आई थिंक कार्तिक कैन रिलेट टू द इट्स मोस्ट। भाई खुद से गाड़ी नहीं ले जाने देते थे भाई। अब देख अबे हाँ राजा सही है में। बेट घर का। गाड़ी छोड़ बे तेरे को निकलने नहीं देते थे सॉरी बट सीरियसली। हाँ बट ठीक है वो होता था बट अब ठीक है अब नहीं होता एटलीस्ट एक दो बार तो पता नहीं तेरे घर में बोले उसके जो दूसरा वाला था उसके घर में बोले हाँ निकल लो रात से पहले घर आ जाना अंधेरे से पहले घर आ जाना। अंधेरे से पहले वो नहीं होता था मेरे 5 बजे साथ। निकलो घर से। अंधेरा का चक्कर नहीं होता था। जाने से ही रोक देते पहले सोर्स पे रोक देते। आगे तक बात ही क्यों जाने देते। निपिन द स्कूटी में आ रहे पार्टी ट्रैफिक में फंस गए, शाम अंधेरा हो जाएगा गया ही चलो नहीं, वापस रात जाए। छोड़। अबे मतलब ऐसे चला रहे पीछे से अंधेरा रहा भाई अंधेरे से पहले पहुंच रहा है भाई बहुत बजाने के लिए बोला है। इतना और diligent कोई नहीं होगा बंदा। वो डेडलाइन मीट करने के लिए हम ज्यादा रिस्क लेते थे ट्रैवल टाइम में। पता है एक्चुअली मैं इस पे वही कर रहा था जब पता है वैसे हम वो स्ट्रिक्टनेस पे हम तब रोते थे बट अभी देखो वो स्ट्रिक्टनेस जब होती है ना तो वो जो थोड़ी सी भी वायलेशन ऑफ रूल्स करके जो मजा आता है ना बड़ी चालाकी से जैसे वो उसी ने करा कि मैं फुटबॉल खेलने जाऊं हाँ बैठ के मुर्तल आ गया वो अलग फील है यार वो अलग चीज है वो। अब हमने स्कूल में भी तो करा ही था जब बंक वाला था। आई नो ये आने वाला था बट इतना घिसा पिटा टॉपिक हो चुका वो तो सोचे कि ना लाते इस बार। नहीं बट वो भी तो था ही स्कूल बंक वाला। मैं कोचिंग के लिए जा रहे हैं बैठ के सब गेमिंग करने गए हुए हैं। सब कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे गाली दे के इधर उधर चिल्ला रहे। भाई पकड़े गए थे यार। द ओनली टाइम वी डू मतलब लोग रोज करते हैं। कुछ लोगों का तो धंधा ही होता है क्लास 12 11 में आके एक बार ही गए हम और फिर बस पकड़ा जाना ही। मेरे को लगता है अभी एक मिनट के लिए टीचर्स के पर्सपेक्टिव से सोच उनको भी पता चलो बच्चों ने बंक किया तो क्या क्या ख्याल आते हैं कि लॉन्डो ने 12 लॉन्डो ने बंक मारा है स्कूल बंक मार के कहाँ गए होंगे कोई पता नहीं ठेके पे ना बैठे हो मूवी देखने ना गए हो और कोई ऐसे कोई सुट्टा वुट्टा फूक रहे होंगे कोई गांचा वांचा फूक रहे होंगे ये सब सोचते होंगे टीचर्स। वहां बैठ के क्या देख रहे हैं बच्चे तो गेम खेल रहे कंप्यूटर पे बैठ के वो भी काउंटर स्ट्राइक खेल रहे थे पहले पुरानी वाली कॉल ऑफ ड्यूटी तो 1.6 वो भी ना मैं तो टीचर ने भी सोचा कितने क्यूट बच्चे हैं यार इनको जाने देते बच्चों को। तुम जाओ बेटा तुम IIT निकालो जाओ। Actually yes I think on that note we can end this podcast। और किसी को कुछ ऐड करना है वैसे कोई और कहानी या कुछ आ रही है बताने को कूल सी कोई याद आ रही है? नहीं आई थिंक कोई व्यूअर को कोई नहीं लिसनर को कोई कूल सी आईटी रिलेटेड कहानी हो या you know email us कहानी हो या वायलेशन ऑफ या you having small rules smallest Indian parent rule breaking them and how you probably got caught or how it was fun for you. Please write to us. Our ID is in the description. And once again, if you're listening it on Spotify, do follow and share. On YouTube, please like, comment, subscribe and share. और I don't think बाकी मीडियम्स पे हमारी ऑडियंस जाती है गूगल पॉडकास्ट रोक दिया तो हम वहां पे अपलोड तो कर रहे हैं तुम्हें जाके सुनना है तो तुम वहां पे जो भी एक्शन लिखे सब कर देना ठीक है जो लिखे कर देना मेरे को नहीं पता बट हाँ way to keep it honest guys way to keep it honest spontaneous नहीं मिल रहा मैं वहां पे any final note from any of you कुछ ऐड करना है कुछ भी मतलब बढ़िया था लाइक सन्नाटा ठीक है घर के लौंडे एकदम ऐसा सन्नाटा था जैसे कॉर्पोरेट में ना तो सो व्हाट्स योर ओपिनियन कार्तिक
Exactly. We'll get back to you in 5 minutes. Sorry, I haven't prepared. But हाँ मतलब बढ़िया like it was good experience और करते हैं आगे ऐसे hopefully डाल और दे भी CV podcast. CV पे डाल देना experienced with नहीं, podcast नहीं, recording ये extracurricular other Highlight achievement. of my career. highlight of my बिल्कुल। career. खुद का चलाऊंगा मैं ठीक है Oh, competition. ये गलत है, ये गलत है भाई। ये मेरे गलत को ये कर competition अच्छा लगता है। ऐसे छुरा डालेगा हमारे पीठ पे। स्ट्रीम यार्ड भी उठा दिया अब तो तुमने, अब तो खत्म है भाई। देखना जरा ये पीछे से पूरी अबे। information निकल रहा है कमीने कुत्ते। ये कट करना है, ये एक्चुअली कट करना है। Alright guys. कौस्तभ anything you would wanna add? कौस्तभ कुछ बोल रहा है? Like, share, subscribe. Alright, that's what I like. That's what I like. Like, share and subscribe काम guys. की बात देख रहा है कार्तिक कुछ सीख साले हमारा धंधा बढ़वा रहा है वो तू देखो। हाँ। ये अलग ये पैरेलल शुरू कर रहा। Anyway, awesome चलो take care guys everyone कभी stay बाद में safe. फिर बुला लेना फिर से कभी. Thanks a lot guys. तू you just make sure कि तेरे आसपास तेरे डैड ना बैठे हो तब तेरे को बुलाएंगे तू बता देना आज डैड नहीं आज मेरे को ऐड कर लो तब तेरे को add करेंगे. Break the We need rules. unfiltered Kaustav basically. Yeah, we Right. need unfiltered Kaustav, not so clean Kaustav. सही है। थोड़ा Right. On that note of not so clean Kaustav, we'll end this podcast. Right. Bye bye अब guys. खत्म कर देते हैं बस। Bye bye. bye guys. चलो.